Hello students, welcome to the fifth video lecture on the topic units and measurement. In a earlier video lecture, we discussed about the different units of the physical quantities, some fundamental units as well as derived units we discussed in that lecture. After that, in a next video lecture, we discuss about the measurement of the length, how to measure the small as well as very large length by using the indirect method. And in a third video lecture we discuss about the how to write the dimension of the physical quantity and its uses, the application of the dimensional analysis. And in a fourth video lecture we discuss about the significant figures and how to round up the numbers. And in this video lecture we are going to discuss about the errors in the measurement. What are the types of the errors and accuracy of the measurement, precision of the measurement and types of the error, and how error is analyzed. And let us start with this unit. What is the least count? Some slides in this video are given just for the knowledge, a revision of this knowledge. So we go fast for it. What is the least count of the instrument? Least count of the instrument is the value that can be measured by the measuring instrument, the smallest value, come se come value that we can measure using the instrument. This is called as a least count or resolution. कम से कम कितना वैल्यू हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं least count or resolution of that instrument. For example, resolution of this scale is a centimeter scale, it is a 1 mm. The resolution of this matlab with that instrument we can measure up to the length of a 1 millimeter. Similarly, these instruments are, this is a ruler scale which least count is a 1 mm. मतलब इससे इस इंस्ट्रूमेंट से हम mm 1 mm तक मेजर कर सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं resolution of the instrument is a 1 mm. वर्नियर कैलिपर का 0.1 mm या सेंटीमीटर में लिखेंगे क्या लिखेंगे 0.01 सेंटीमीटर. Then another instrument, the instrument of a screw gauge having a least count is a 0.01 mm या 0.001 centimeter, या least count of this known as a spirometer. During the practical hours we will discuss about it. So these three instruments, vernier caliper, screw gauge and spirometer, these are the three instruments which is used to measure the length और small diameter thickness इसके लिए. और least count of this least count of a spirometer is a 0.00, this is a centimeter, इसका रहेगा ये सेंटीमीटर में, up to the centimeter, not a mm. And least count of this instrument या weighing scale is a 1 kg. कम से कम ये 10, या मतलब इसका अगर इसमें देखेंगे तो 10 0 to 10 के बीच में कितना लाइन से 10 लाइन से, मतलब हर लाइन का वैल्यू, ईच लाइन हैविंग ए वैल्यू इज 1 kg. सो इसका लिस्ट काउंट इज लिस्ट काउंट कितना आएगा 1 kg. तो लिस्ट काउंट इज 1 kg. तो ये इसका मतलब होता है एलसी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इट इज ए लिस्ट काउंट इज 1 ग्राम. और देन the watch we are using, it is least count is a 1 second. Least count of this watch is a 0.1 second. These are the different instruments we are using in our daily life and their least counts. Then now we'll discuss about the accuracy of a measurement. What is the accuracy of the measurement? Accuracy
of a measurement, it refers the closeness of the measurement to the true value of the physical quantity. किसी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू कितना क्लोज हम मेजर कर रहे हैं एक्चुअल ट्रू वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू और when we are measuring that value of this using this some instrument, how we are close to that true value actual value के साथ कितना close है, which is known as accuracy. For example, true value of a mass is a कोई अगर एक मास है उसका सही वैल्यू कितना है 25.67 kg. अगर दिस इज द ट्रू वैल्यू देन मास इज टू मेजर्ड बाय द ए स्टूडेंट. किसी स्टूडेंट को इसका मास मेजर करने के लिए बताया, उसने मेजर किया कि 25.61 kg. बी स्टूडेंट ने मेजर किया 25.65 kg. अगर ये दो ऑब्जर्वेशन को देखेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, so this value which is measured by the student B, it is a very close or more close as compared to the student A. The measured scale of the student A is more accurate. You can say it is a more accurate. So what is the then precision? Accuracy समझ में आया, तो अभी precision की बात करते हैं. It refers the limit to which physical quantity is measured. तो कितना लिमिट तक ये मेजर कर सकता है, दिस नॉन एज ए प्रिसीजन रेफर्स टू बी लिमिट टू विच फिजिकल क्वांटिटी इज ए मेजर. फॉर एग्जांपल, टाइम इज ए मेजर्ड बाय ए स्टूडेंट इज ए 3.6 सेकंड. वही स्टूडेंट बी ने मेजर किया 3.69 सेकंड और सी ने मेजर किया टाइम 3.695 सेकंड. अभी इसमें देखेंगे तो ये फर्स्ट डिजिट जो है वो सभी का 3 है, सेकंड डिजिट पे ही 6 है, लेकिन ये अप टू 1 डिजिट डेसिमल पॉइंट तक ही मेजर कर पाए, ये 2 डेसिमल तक और ये 3 डेसिमल तक मेजर किया. मतलब प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट इज मोर दैट द मेजरमेंट मेड बाय स्टूडेंट सी इज ए मोर प्रिसाइज. इसका मतलब ये एक्यूरेसी is a more, or the limit of the resolution of that instrument is a more, it is a or up to the 3 places of the decimal or least count of the instrument which is a measured by the measurement is made by the student C is a more as compared of a B and C. So the value of this student C is a measured, it is a more precise than B and E. So this is the meaning of the precision. Precision मतलब the measurement is made by the student, या made with the high least count, more accuracy. The accuracy will be more. Least count अगर high है तो higher is the LC, more is the accuracy. And the instrument is or this value is a more precise when they have that instrument having a higher LC least count, and the measured value is more precise. Measured value is a more precise. तो स्टूडेंट्स ये प्रिसीजन, एक्यूरेसी और एक्यूरेसी मतलब रिजोल्यूशन, ये सब समझ में आया होगा. तो चलो आगे के टर्म देखते हैं. एरर्स इन द मेजरमेंट, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू. एक्चुअल मतलब जो अगर किसी लेंथ अगर डिफाइन किया विद हाई रिजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट से इज ए 10 मीटर या 10.1 मीटर, तो वो हो गया ट्रू वैल्यू. The difference between the actual value of a quantity and value obtained by the measurement is called as a error. So difference between, किसका difference? The actual value and measured value. So इसको this is the error equal to actual value of the instrument. For example, actual value it is a x एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ किसी इंस्ट्रूमेंट से किसी बच्चे ने मेजर किया तो वो वैल्यू अगर y है, तो ये जो डिफरेंस है
ये मॉड में लेंगे, दिस इज द डेल्टा y, मतलब जो मेजर्ड वैल्यू एक्चुअली हाउ मच मेजर्ड वैल्यू इज डेविएटेड फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू, दिस नोन एज ए एरर, उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एरर। तो एरर हैज ए 3 टाइप्स, सिस्टमैटिक एरर, ग्रॉस एरर एंड रैंडम एरर। एरर हैज दिस 3 टाइप्स, one is a systematic error, gross error and random error. So what are the systematic errors? These errors are raised due to the flaws in the experimental system. some गलती उसमें कुछ त्रुटि है किसमें, experimental system में, तो उसकी वजह से जो आता है this known as a systematic error. Systematic error involve observer, measuring instrument and environment. किस तरीके से ऑब्जर्वर, अगर व्हेन ऑब्जर्वर इज टेकिंग द ऑब्जर्वेशन ही इज अ वेरी केयरलेस, इट इज नॉट टेकिंग केयरफुली, देन देयर विल बी एरर। या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे कोई अगर गैलोनोमीटर है या मेजरिंग करंट मेजरिंग डिवाइस है, ये यहाँ इनिशियल पॉइंट इज इन प्लेस ऑफ द जीरो, इंस्टेड ऑफ द जीरो this point is just slightly more than zero, then definitely there will be a error in the measurement. Yeah, the scale which is a calibrated over the instrument, it is a some defect, then instrument is a less accurate. And some environmental condition also they affect in the measurement. For example, the variation of the fluctuation in the electric current, that also differ the value, measured value in a experiment which is related to the electrical circuit या current measurement. The error is eliminated by detecting the source of the error. तो ये error, अगर systematic error को अगर detect eliminate करना है, कम करना है, तो we can minimize or we can eliminate them by detecting the source of, कहाँ से source of error है उसको अगर detect करेंगे तो systematic error कम हो जाएगा। तो ये किस तरीके से, अगर ऑब्जर्वर जो है उसकी वजह से, इंस्ट्रूमेंट की वजह से और एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से ये सिस्टमेटिक एरर आता है। देन द सिस्टमेटिक एरर हैज ए 3 टाइप्स, पर्सनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर या एनवायरमेंटल एरर। तीन कॉज की वजह से ये एरर आता है। जब पर्सनल एरर है तो इसका देखेंगे, अगर कोई यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, ये जो स्केल है यहाँ हमें ऑब्जर्व करना है, ये पॉइंट यहाँ से देख रहा है, तो ऑब्जर्वर डेफिनेटली क्या देखेगा, ये थोड़ा सा पीछे देखेगा, ये साइड से देखेगा, वो भी गलत है। उसने एक्चुअली कैसे देखा है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द पॉइंटर, इसमें देखेंगे तो उसका ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, करेक्ट आएगा। यहाँ से मेजर करेंगे तो सम mm का डिफरेंस आएगा, यहाँ से मेजर करेंगे तो बिल्कुल सामने से देखना है, जैसे परपेंडिकुलर टू दी ऑब्जर्व रीडिंग स्केल, हम अपना आई लाना है तब ऑब्जर्वेशन करेक्ट आएगा। दिस इज द known as a personal error. By incorrect measurement, that personal error occurs. Another, this is the instrumental error. Instrumental error is due to the faulty construction of the instrument. अभी यहाँ देखो, अगर ये इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, यहाँ कितना है, जीरो से थोड़ा सा आगे है और ये जीरो से थोड़ा पीछे है। अगर ऐसा डिवाइस से हम मेजरमेंट करेंगे वोल्टेज या करंट, तो क्या होगा, it will measure value, it will be more, little more, it will be little less. So this is the faulty design of the instrument. Then environmental error, these error caused by the external condition like a pressure, temperature, magnetic field, wind condition etc. ये अलग अलग फैक्टर्स है जिसके ऊपर ऑब्जर्वेशन को अफेक्ट करते हैं ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशन. The following are the steps that must be followed in order to eliminate the environmental errors. So try to maintain the temperature or humidity of the laboratory constant by making the some arrangement. अगर हम एक टेम्परेचर रिलेटेड कोई इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखने की कोशिश करना है इन द लेबोरेटरी, और जो ह्यूमिडिटी कंडीशन है तो वह स्टैंडर्ड ह्यूमिड कंडीशन रखना है, बहुत कोल्ड होगा या ह्यूमिडिटी मतलब amount of the water droplets present in the atmosphere या air, this known as a humidity, वो मेंटेन रखने की कोशिश करना है. तो ensure that there should not be any
external magnetic field or magnetic field around the instrument. अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो टेबल पे अगर कोई मैग्नेट पड़ा है, कुछ अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ या कॉइल्स है उसमें करंट पास हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. दैट केयर शुड बी टेकन व्हाइल मेजरिंग द और टेकिंग द ऑब्जर्वेशंस. सो एडवांस एक्सपेरिमेंटल सेटअप अगर बहुत हाई एक्यूरेसी चाहिए, हाई रिजोल्यूशन चाहिए, तो ये एक एग्जाम्पल है कि हाई एक्यूरेसी के लिए दैट लैबोरेटरी इज ए मेंटेन विद द हाईली रिजोल्यूशन इक्विपमेंट्स, जिसका लिस्ट काउंट बहुत ज़्यादा है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल चेकिंग द आईज, नंबर ऑफ आई या आई का डिफेक्ट कौन सा है, इसके लिए भी हाई रिजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर्स यूज करते हैं. इस तरीके से हाई रिजॉल्विंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज फॉर द एक्यूरेसी पर्पज. Then second type of the error is a gross error. These errors are caused by the mistake using the instrument, recording data or calculating the result. Gross error मतलब error caused by the mistakes using the instrument. instrument की वजह से कुछ mistakes हो गया और recording the data की वजह से कुछ mistake हो गया और calculating the result calculation में mistake होता है. तो this errors is known as a gross error. ये person may read the pressure gauge indicating the 1.01 Pascal instead of 1.10 Pascal. This is a personal mistake by taking the observation or noting the observation. By mistake person is use the ordinary electronic scale. अगर छोटा सा एक scale ordinary scale having a poor sensitivity to measure the low masses. Careful and recording the data can be reduced the gross error. But why careful reading and recording the data can be reduced the gross error to the great extent. This is known as a gross error. Then random error. These errors are due to the unknown causes. किसकी वजह से आ रहा है हमें उसका cause पता नहीं. Are measured and are sometimes termed as a chance of the error. Due to the unknown cause, they cannot be eliminated. So unknown cause कुछ unknown cause है. Sometimes current fluctuation रहता है लेकिन हमें पता नहीं चलता, तो उसकी वजह से some reading में बहुत ज़्यादा difference आता है. They can only be reduced and error can be eliminated by using some statistical operations. Some statistical operations से इसको minimize कर सकते हैं. Error analysis. For example, suppose you measure the oscillation of period of a pendulum with the stopwatch 5 times. अगर ये ट्रायल ये इसका 1 2 3 5 ट्रायल लिया और ये पेंडुलम का ऑसिलेशन मतलब टाइम पीरियड एक जाकर ऑसिलेशन फिर वापस ऑसिलेट होकर यहाँ आता है, तो ये इसको बोलेंगे वन ऑसिलेशन. और वो हम ये वॉच से नोट कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 3.9 आया, दूसरा ऑब्जर्वेशन 3.5 आया, तीसरा 3.6 आया, 3.7 एंड 3.5 आया. मतलब दीज ऑब्जर्वेशंस ये दे आर मोर क्लोजली. So suppose you measure the oscillation period of a pendulum with the stopwatch in 5 times. तो अगर number of observation ज़्यादा टाइम लेने से भी क्या होता है, एरर मिनिमाइज होता है. जैसे पहला ऑब्जर्वेशन लिया 3.9, हम एक ही ऑब्जर्वेशन लेते तो हम 3.9 लेते थे, लेकिन एक 5 टाइम लिया और उसका मीन फाइंड किया तो एरर विल बी है रिड्यूस. इसीलिए हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें बोलते कि हाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा ले लो, 4-5 ले लो, 8 ले लो, कभी 10 ले लो और उसका मीन ले लो. इसका मतलब एक ऑब्जर्वेशन लेते वक्त अगर गलती किया है और या 2-3 और ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेने से एक्यूरेसी क्या होगा, बढ़ेगा और बाद में उसका क्या करना है, मीन लेना है, तो द एरर विल बी ए रिड्यूस्ड. मीन वैल्यू. Then all this observation is taken, this 5 ऑब्जर्वेशन लिया उसका ये मीन फाइंड किया, सभी का ऑब्जर्वेशन का सम करके 5 से डिवाइड किया क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशन लिए तो मीन आया 5.2.
3.6। तो 3.6 कौन सा है, एक ही ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन, लेकिन ये सब का मीन फाइंड किया था एक्यूरेसी 3.6। अगर हम एक ही लेते थे तो 3.9 लेते थे, लेकिन 3.6 इज ए मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू द 3.9 या अदर ऑब्जर्वेशंस। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। Then this is the important term in terms of the numericals, ask the what is the absolute error। ये absolute error क्या है, the magnitude of the difference between the mean value magnitude of the difference between the mean value and the individual value is called absolute error। mean value और जो individual value उसका जो difference है उसको बोलेंगे absolute errors बोलेंगे। क्या, absolute error। मतलब ये जो mean value है, कौन सा mean value, इसमें ये जो mean value डेल्टा xi, अगर ये पहला ऑब्जर्वेशन है, हमने यहाँ कितना लिया था, जैसे xi मतलब ये हो गया 3.9 और इसका मीन कितना आया था 3.6। अगर ये दोनों का डिफरेंस लेंगे और मॉड में रखेंगे तो ये आएगा 0.3 और ये पॉजिटिव लेना है क्योंकि मॉड में है। दूसरा डिफरेंस कितना है, माइनस दिस इज 3.1, 3 ये 0। तो ये डिफरेंस को क्या है बोलते हैं, एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड मीन वैल्यू, दिस नॉन एज ए एब्सोल्यूट एरर। तो जो भी एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, जो भी इंडिविजुअल वैल्यू जो लिया, पहला वैल्यू लिया था टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम 3.9, उसके बाद 3.6, इस तरीके से। और मीन कितना आया था, हमारा मीन आया 3.6। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये मीन कितना है 3.6 है, दिस इज द 3.6 वैल्यू, ये 3.6 वैल्यू। और ये 3.6 वैल्यू को क्या करना है, सभी वैल्यूज उससे माइनस करना है, डिफरेंस लेना है और मॉड में रखना है, तो ये सभी वैल्यूज क्या आएगा प्लस। उसके बाद ये सबका ऐड करना है और उसका मीन फाइंड करना है, कितना, पहला की था 0.1, दूसरा 0.2 और 0.1, ये ऐड किया और डिवाइड किया तो ये आ गया 0.12। और इसका अगर 1 डेसिमल तक ही रखना है तो इसको क्या है, सेकंड डेसिमल 5 से छोटा, इसको छोड़ देंगे तो ये जैसे द मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। मीन मतलब एवरेज या मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद रिपोर्टिंग द रिजल्ट, the most common way adopted by the scientists or engineers report the result will be result बेस्ट एस्टिमेट प्लस माइनस एरर। क्या मतलब, कोई भी अगर वैल्यू दिया तो उसमें कितना एरर पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द दिस इज गिवन एज ए 6.2 किलो ओम और प्लस माइनस एरर का कितना है, सपोज 5% ऑफ ए एरर। ये कम ज़्यादा हो सकता है, टेम्परेचर से वेरिएशन हो सकता है। It is a represent the range of a value from that we expect that true value is a fall within, मतलब actual value इनका बीच में रहेगा, the value may be vary 5%। Thus the period of the oscillation likely to be, कितना था हमारा मीन, तो कितना आया था 3.6, लेकिन ये परफेक्ट वैल्यू है ना, इट मे बी प्लस माइनस 0.1 सेकंड, मतलब इससे कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, कितना 3.6 से, मतलब एक्चुअल दिस मेजर्ड वैल्यू मे बी डेविएट फ्रॉम 0.1 सेकंड। देन रिलेटिव एरर, हमने क्या पढ़ा, एब्सोल्यूट एरर पढ़ा। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर जस्ट रिकॉल करो, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला, थोड़ा सा जस्ट रिकॉल करो। तो ये जो एब्सोल्यूट एरर है, तो इसको क्या किया हमने, एवरेज वैल्यू फाइंड करा कि इसका जो 5 ऑब्जर्वेशन है उसका, और तो वो मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, उसके बाद वो हर जो इंडिविजुअल वैल्यूज है, एक एक वैल्यू जो मीन वैल्यू से डिफरेंस निकाला और वो मॉड में लिया, और उसके बाद में मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड किया, वो 0.1 आ गया।
और जब रीडिंग रिपोर्टिंग करेंगे, जब इसका रीडिंग रिपोर्ट करते हैं तो रिपोर्टिंग के टाइम में क्या लिखेंगे, दिस इज ए 3.6 प्लस माइनस 1 सेकंड, कौन सा 0.1 सेकंड, मतलब दिस वैल्यू में बी डेविएट फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू बाय द 0.1 सेकंड से डेविएट हो सकता है। उसके बाद देखो अभी रिलेटिव एरर, दिस इज द इम्पोर्टेंट टर्म। रिलेटिव एरर मतलब डेल्टा एक्स, relative error is defined as ratio of the mean absolute error. This is the ratio of the mean absolute error, mean absolute error to the ratio of the mean absolute to the mean value, mean value। अगर इसमें देखेंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया था हमारा 0.1 आया था, और मीन वैल्यू कितना आया था 3.6। तो ये अगर डिवाइड किया तो ये हो गया डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स, मतलब रिलेटिव एरर इट जे, और इसको राउंड अप करते हैं, ये डेसिमल अगर छोड़ देंगे बी इट इज मोर देन 5 है, प्रिसाइडिंग डिजिट इज एडेड बाई 1, तो ये 1 2 आएगा, राइट। देन परसेंटेज ऑफ द एरर, इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल भी ले रहे हैं कि किस तरीके से करना है, फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो परसेंटेज एरर निकालना है तो क्या कर, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100, या डायरेक्ट परसेंटेज एरर निकालना है, परसेंटेज एरर इक्वल टू रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू 100। सो डेल्टा एक्स कितना आया था हमारा 0.1, और मीन वैल्यू कितना आया था 3.6, तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव एरर। और इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये परसेंटेज ऑफ द एरर आएगा, मतलब एरर परसेंटेज कितना था, वो जो मेजरमेंट किया 5 ऑब्जर्वेशन द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम, इसका जो ऑब्जर्वेशन लिया उसमें कितना परसेंट एरर आया, तो 2.8% जो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट था, तो एरर इज एट 2.8%। लिस्ट काउंट एरर, the least count error is the error associated with the resolution of the instrument, resolution of instrument के वजह से जो error आता है this known as a least count error। least count error may be of any instrument is equal to the resolution, length of the pen is likely to be 4.7 centimeter और 4.8 centimeter। अगर हम किसी का पेन का ये लेंथ मेजर करने के लिए बताया, तो अगर यहाँ से देखेंगे तो ये 4.7 है, लेकिन ये थोड़ा सा आगे है, इट मे बी 4.7 या 4.8 हो सकता है, लेकिन हमारा स्केल का रिजोल्यूशन कितना है 0.1 क्या है सेंटीमीटर है ओनली, तो इसीलिए इसका रिजोल्यूशन क्या रहेगा, लाइकली इट लेंथ 4.7 सेंटीमीटर हो सकता है या 4.8 सेंटीमीटर भी हो सकता है। अगर इसी को हम दूसरा इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे जिसका लीस्ट काउंट हायर है, इट मे बी 4.74 सेंटीमीटर, तब क्या बोलेंगे हम 7 मतलब ये भी वैल्यू नहीं लिया, ये भी नहीं, इसका बीच में आ गया, इसका मतलब रिजोल्यूशन के रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी क्या होता है, अफेक्ट करता है कि हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट किया है। देन हम पढ़ रहे हैं, चलो इसके पहले एक न्यूमेरिकल बताते हैं ये इसका, हाँ ये क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में दिया था, एब्सोल्यूट एरर रिलेटिव एरर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टू फाइंड के लिए पूछते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम, पहले भी पेंडुलम का क्वेश्चन था लेकिन ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम in the successive measurement in the reading turn out to be 2.63 second, 2.556 second, 2.42 second, 2.71 second and 2.80 second. Calculate the absolute error, relative error and percentile error. So time period, mean time period क्या करेंगे, mean time period सबका पहले mean time period निकालेंगे, 2.63 second plus 2.56 second plus 2.42 second plus 2.71 second plus 5, कितना ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 है, तो दिस इज ए 2.80 सेकेंड, और ये सबको ये डिवाइड बाई 5,
और ये डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करने के बाद कितना से डिवाइड करना है, कितना से डिवाइड करना है 5, सबका टोटल करो और इसको 5 से डिवाइड करो तो ये आएगा 13.12 डिवाइड बाई 5 सेकेंड और दिस विल बी है 2.624 सेकेंड। और इसका अगर राउंड अप करना है 2 डेसिमल तक तो ये कितना है 4 है, लेस देन 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं राउंड अप में 2.62 सेकेंड। और ये हो गया क्या है, ये मीन टाइम पीरियड, दिस इज द डेल्टा टी और डेल्टा टी, नॉट डेल्टा टी, इट इज ए मीन टाइम पीरियड, डेल्टा टी से नहीं बदलते, डेल्टा टी वेरिएशन के लिए, डेल्टा टी वेरिएशन के लिए। द एरर इन द मेजरमेंट, ये लिखेंगे हम इसको, एरर इन द मेजरमेंट इसको लिखेंगे डेल्टा टी कितना आता है, फर्स्ट मेजरमेंट से कितना है, तो फर्स्ट मेजर वैल्यू कितना है 2.63 है, और मीन वैल्यू से अगर डिविएट करेंगे 2.62, दिस इक्वल टू 0.1 सेकेंड, और ये मॉड में लेंगे इसका। दूसरा वैल्यू कितना है 2.56 माइनस 2.62, ये भी मॉड में लेंगे तो इसका दिस इक्वल टू 2.06 आएगा सेकंड में ये सभी। तीसरा वैल्यू कितना है, तीसरा है 2.42 माइनस 2.62, हाँ तो इसका वेरिएशन कितना आएगा, दिस विल बी है 0.02 सेकेंड। ये सभी मॉड में इसलिए प्लस माइनस का प्लस ही रखना है। तीसरा वैल्यू कितना है 2.71 माइनस 2.62 और दिस इक्वल टू 0.09 सेकेंड। उसके बाद फिफ्थ वैल्यू 2.80 माइनस 2.62 और दिस वैल्यू इज ए 0.018 सेकेंड। और डेल्टा टी मतलब इसका एरर का मीन निकालना है, डेल्टा टी तो सभी वैल्यूज को क्या करना है, ये जो वैल्यूज आया ये डिफरेंस या एरर फ्रॉम द मीन से क्या करना, हर वैल्यू को माइनस करना और इसका मीन फाइंड करो। 0.1 प्लस 0.606 प्लस 0.02 प्लस 0.09 प्लस कितना गया ये 0.18 डिवाइड बाई कितना लेना है 5, सो दिस इक्वल टू कितना आता है 0.54 सेकेंड डिवाइड बाई 5 और दिस वैल्यू इज ए 0.11 सेकेंड। अब देखो अगर इसका वैल्यू रिपोर्टिंग करना है तो मीन कितना आया, जो मेजर्ड वैल्यू और मीन जो फाइंड किया उसका आ गया 2.6 और उसमें इसको अगर 1 डेसिमल तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये आएगा 0.1, दिस डेसिमल हम छोड़ देंगे क्योंकि ये 5 से छोटा है। तो ये यहाँ रिपोर्टिंग करेंगे, जब रिपोर्टिंग करना है हमें तो रिपोर्टिंग क्या करना है, तो दिस विल 2.6 प्लस माइनस 1 सेकेंड, मतलब जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम, ये एक ऑसिलेशन होके वापस ये पेंडुलम में यहाँ से ऑसिलेट होके फिर वापस जाता है, इसके लिए टाइम पीरियड बोलते हैं। और ये टाइम पीरियड कितना है 2.6 है सेकंड, लेकिन जो दिस मीन है दिस मे बी वेरी मोर देन 1 सेकंड, मतलब 2.7 हो सकता है और 2.5 भी हो सकता है, मतलब ये बीच में ये वैल्यू आएगा, दिस इज ए टाइम पीरियड ऑफ ए मेजरमेंट। चलो अभी रिलेटिव एरर कैसे निकलते देखते हैं। द अरिथमेटिक मीन तो फाइंड किया, दैट्स डेल्टा एम, अरिथमेटिक ऑब्सोलेट एरर दिस विल बी ए वैल्यू 1.6 सेकंड आ गया। तो रिलेटिव एरर में होता है डेल्टा टी, मतलब ये जो वैल्यू डिवाइड बाई मीन और इक्वल टू कितना आया था डेल्टा टी 0.1 और ये कितना आया था 2.6 मीन आया था। तो अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 0.04 और
ये हो गया रिलेटिव एरर, मतलब जो मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन ऑफ द एरर, उससे डिवाइड करेंगे तो ये हो गया रिलेटिव एरर। और ये जो है परसेंटाइल एरर आता है, परसेंटाइल, तो इसको क्या करना है, परसेंटाइल एरर इक्वल टू रिलेटिव एरर multiply by 100. So this is equal to 0.04 multiply by 100, तो परसेंटाइल एरर आएगा 4%। एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन था, तो कैसे रिलेटिव एरर परसेंटाइल एरर कैलकुलेट करते हैं इसके समझाने के लिए। चलो पहले वो थोड़ा सा ये पार्ट बाकी वो देखते हैं। पहले जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर है in a different mathematical operation like addition, subtraction, multiplication or division, that error can be combined अगर कंबाइन अकॉर्डिंग टू सम रूल। जैसे दो वैल्यूज है उसका हमें ऐड करना है और दोनों में एरर है, तो वो कॉम्बिनेशन के बाद एरर कितना आएगा। द डेल्टा ए बी द एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा ए बी द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए, और डेल्टा बी इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए बी, और डेल्टा एक्स इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए एक्स। इस तरीके से ये इसका मतलब इसमें जो मेजर किया वैल्यू ए का, उसका वैल्यू एरर कितना, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए था। सब डिवीजन में लिखेंगे तो दिस इज द रिलेटिव एरर डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एक्स, लेकिन दो ऑब्जर्वेशन था, डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाय ए, दिस प्लस माइनस बी, और डेल्टा एक्स एरर कितना है इसका, x इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा क्या आएगा b, और मल्टीप्लीकेशन और दिस इज ये जब था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो दोनों में एरर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, दिस इज द एरर इन द मेजरमेंट। और डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में डेल्टा x डिवाइड बाई x इक्वल टू डेल्टा a डिवाइड बाई a प्लस डेल्टा b डिवाइड बाई b। अब ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो तो वो यही आएगा, और अगर ये x इस साइड में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ। तो इसका जब हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर में कुछ, तब ये और अच्छा तुम समझ जाएंगे। हाँ, तो उस टाइम पे तुम्हें अच्छी तरह से समझाएंगे। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। लंबा वीडियो हो गया तो तुम लोग बोर हो जाता है, इसलिए मैं ये न्यूमेरिकल पार्ट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लूँगा, और इसी के साथ ये थ्योरी पार्ट ऑफ दिस यूनिट इज़ कंप्लीट। और ये वीडियो लेक्चर मैं इसी का न्यूमेरिकल से रिलेटेड अपलोड करूँगा, वो ठीक से देखो और कुछ दिक्कत हो तो बात करो। थैंक यू, हैव ए गुड डे।